السلام علیکم، میں شیخ الیاس عبداللطیف تمام طلباء و طالبات کا ام المدارس ایم اے پانکلنگ اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف آرٹس اینڈ سائنس شولاپور کی جانب سے دلی استقبال کرتا ہوں اور آپ کو لے چلتا ہوں سبق نمبر 3 قوت اور دباؤ کی طرف۔ تو چلو دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں سبق نمبر 3 قوت اور دباؤ۔ ذرا یاد کیجئے، قوت سے کیا مراد ہے؟ ساکن جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ ساکن ہی رہتا ہے۔ متحرک جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ اسی رفتار سے اسی سمت مسلسل آگے بڑھتا ہے۔ یہ حرکت کے متعلق نیوٹن کا پہلا قانون ہے۔ اب ہم دیکھیں گے متعلقہ اور غیر متعلقہ قوتیں، جسے کانٹیکٹ اینڈ نان کانٹیکٹ فورسز کہا جاتا ہے۔ تو چلیے متعلقہ اور غیر متعلقہ قوتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ شکل میں موٹر دھکیلنے کے لیے آدمی پچھلی جانب سے قوت لگا کر اسے آگے دھکیل رہا ہے۔ اڑ کر بیٹھے ہوئے کتے کو مالک کھینچ رہا ہے، اور فٹ بال کھیلنے والا لڑکا پیر سے گیند کو اچھال رہا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دو اشیاء کے درمیان باہمی عمل سے اس شے پر قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ شکل میں دکھایا گیا ہے کہ مقناطیس کے قطبین پر مقناطیسی قوت کی وجہ سے کیلیں چپک جاتی ہیں۔ ناریل کے درخت سے ناریل نیچے گرتا ہے۔ ثقلی قوت کی وجہ سے اشیاء زمین کی طرف کھینچتی ہیں۔ بالوں پر پھیرے ہوئے کنگھے کی جانب میز پر رکھے کاغذ کے ٹکڑے مائل ہوتے ہیں۔ کنگھے پر برق سکونی کے برقی بار اور کاغذ کے ٹکڑوں پر مخالف، جسے غیر مشابہ بھی کہا جاتا ہے، برقی بار ہونے سے وہ ٹکڑے کنگھے سے چپک جاتے ہیں۔ شکل میں اشیاء کے ایک دوسرے سے راست تعلق کی وجہ سے یا کسی اور شے کے ذریعے ربط میں آنے سے قوت کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی قوت کو متعلقہ قوت کہتے ہیں۔ شکل میں دو اجسام کے درمیان تعلق نہ ہو تب بھی ان کے درمیان قوت کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ایسی قوت کو غیر متعلقہ قوت کہتے ہیں۔ متعلقہ قوت کی ایک مثال عضلاتی قوت ہے، جو ہمارے عضلات کی مدد سے اشیاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اٹھانا، دھکیلنا، کھینچنا ایسے بہت سے افعال کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مقناطیسی قوت، ثقلی قوت، قوت برق سکونی جیسی قوتیں کسی ربط کے بغیر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی لیے وہ غیر متعلقہ قوت کی مثالیں ہیں۔ میز پر ایک گیند رکھ کر اسے ہلکی ضرب لگانے پر وہ آگے حرکت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے ساکن ہو جاتی ہے، یعنی ٹھہر جاتی ہے۔ ہموار راستے پر دوڑتی ہوئی موٹر گاڑی کا انجن بند کرنے پر وہ کچھ فاصلے تک جا کر رک جائے گی۔ میز اور زمین کی سطح اور اس پر متحرک اجسام کے درمیان قوت رگڑ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر قوت رگڑ نہ ہو تو نیوٹن کے حرکت کے پہلے قانون کے مطابق
मुतहरिक जिस्म मुतहरिक ही रहता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुव्वत रगड़ बहुत ही मुफीद है। ज़मीन पर चलते वक्त हम अपने कदमों से ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं। अगर रगड़ ना हो तो हम चल नहीं पाते और फिसल कर गिर जाते हैं। कुव्वत रगड़ तमाम मुतहरिक अज़ाम पर असर करती है और ये हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। आपने देखा होगा रास्ते पर लोग केले के छिलके की वजह से फिसल जाते हैं, इसी तरह कीचड़ की वजह से भी फिसल सकते हैं। इन दोनों मिसालों में फिसलने का अमल रगड़ की कमी की वजह से होता है। आइए दिमाग पर जोर दें। मुताल्लिका और गैर मुताल्लिका कुव्वत जाहिर करने वाली मिसालों की फहरिस्त तैयार करना है आपको। ये कुव्वत की कौन सी किस्म है, तहरीर करना है आपको। दो छोटी और चौकोनी शक्ल की प्लास्टिक की बोतलें लीजिए। इनके मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद कीजिए। दोनों बोतलों पर छोटी मैग्नेटिसी पट्टियां टेप की मदद से अच्छी तरह चिपकाइए। एक बड़े प्लास्टिक के टब में पानी भरकर इसमें ये बोतलें इस तरह तैरती हुई रखें कि मैग्नेटिसी पट्टियां ऊपर की जानिब हों। एक बोतल को दूसरी के करीब ले जाइए। मैग्नेटिस के मुखालिफ कुतबैन एक दूसरे को कशिश करते हैं। एक बोतल का शुमाली कुतुब और दूसरी बोतल का जनूबी कुतुब करीब हो तो दोनों बोतलें एक दूसरे को कशिश करती हैं। बोतलों की सिमत बदलने पर क्या होगा, इसका मुशाहिदा आपको करना है। रास्त ताल्लुक न होते हुए भी हमको बोतलों की हरकत में तब्दीली नज़र आती है, यानी मैग्नेटिस में गैर मुताल्लिका कुव्वत काम करती है। आइए दिमाग पर जोर लगाएं। आपने गुज़िश्ता जमातों में बरके सुकूनी के मुतालिक मालूमात हासिल की है। बरके सुकूनी एक गैर मुताल्लिका कुव्वत है। इसे साबित करने के लिए आप कौन सा तजुर्बा करेंगे? दिमाग पर जोर लगाइए और तजुर्बा कीजिए। चलिए आगे बढ़ें और मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वत है जिसे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाता है। शक्ल में दिखाए गए तरीके से एक पट्टे के डिब्बे की दोनों जानिब मजबूत धागा या सुतली बांधकर इसे मेज़ की हमवार सतह पर रखिए। धागे को मेज़ की दोनों जानिब नीचे लटकाइए। दोनों सिरों पर यकसा कमियत के पल्लड़े बांधिए। दोनों पल्लड़ों में एक ही कमियत की अशिया या औज़ान रखिए। डिब्बा मेज़ पर साकेन दिखाई देता है। किसी एक पल्लड़े में दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा कमियत की अशिया रखने पर डिब्बा ज़्यादा कमियत की जानिब बढ़ता है। जब पल्लड़ों में यकसा कमियत होती है दोनों पर मसावी शकली कुव्वत अमल करती है, यानी डिब्बे पर मुतवाज़न कुव्वत अमल करती है जो मुखालिफ सिमत में होने की वजह से माहसल कुव्वत सिफर हो जाती है और डिब्बा नहीं हिलता। जबकि एक पल्लड़े में ज़्यादा कमियत रखने से डिब्बा ज़्यादा कमियत वाले पल्लड़े की सिमत हटने लगता है। डिब्बे के दोनों जानिब गैर मसावी कुव्वत लगाने से गैर मुतवाज़न कुव्वत अमल करती है, जिसके नतीजे में डिब्बा हरकत में आता है। रस्सा कशी मुकाबले में बच्चे अपनी अपनी जानिब रस्से खींचते हैं। दोनों जानिब मसावी कुव्वत हो तो रस्सी नहीं हिलेगी। अगर किसी जानिब कुव्वत ज़्यादा हो तो रस्सी उसी जानिब हटती है, यानी पहले कुव्वत मुतवाज़न रहती है। इसके गैर मुतवाज़न होते ही रस्सी ज़्यादा कुव्वत वाली सिमत में खींची जाएगी। और एक मिसाल देखिए, अनाज से भरे एक बड़े डिब्बे पर अगर एक आदमी की बजाय दो आदमी एक ही जानिब से कुव्वत लगाएं तो डिब्बे को हटाना आसान हो जाता है। ऐसा तजुर्बा आपने भी किया होगा। इस मिसाल से क्या वाज़ेह होता है? अगर किसी शय पर
एक ही सिमत से कई कुव्वतें अमल करें तो असरअंदाज कुव्वत इन कुव्वतों के मजमूए के बराबर होती है। अगर एक ही शय पर मुखालिफ सिमत से दो कुव्वतें अमल करती हों तो शय पर अमल करने वाली कुव्वत इनके फ़र्क के मसावी होगी। कुव्वत सिमती मिक़दार है, इसीलिए कुव्वत को कद्र और सिमत में ज़ाहिर किया जाता है। किसी शय पर एक से ज़्यादा कुव्वतें अमल करें तो इस शय पर होने वाला असर सिर्फ इस पर लगाई गई कुल कुव्वत की वजह से होता है। कुव्वत की वजह से साकिन जिस्म मुतहरिक होता है और मुतहरिक जिस्म की चाल और सिमत में तब्दीली होती है। इसी तरह मुतहरिक जिस्म को साकिन करने के लिए भी कुव्वत की ज़रूरत होती है। कुव्वत की वजह से जिस्म की साख्त भी बदल सकती है। जैसे आटा गूंथते वक्त आटे के गोले पर कुव्वत लगाने से उसकी शक्ल बदलती है। कुम्हार घड़े को शक्ल देते वक्त मखसूस सिमत में कुव्वत लगाता है। रबर बैंड को तानिए, फिर वो फैल जाता है। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। नाज़रीन, वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे नाज़रीन भी फैज़ पा सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।